Hello students. Today I am discuss of the carboxylic acid, the chemical property of carboxylic acid. Okay students. Now previous lectures attains are all students known the preparation of the carboxylic acid and physical property of the carboxylic. So let us start of the chemical property of carboxylic acid. Chemical property of the carboxylic acid. Okay, let's start chemical property of the carboxylic acid. Number one, acidic character. Acidic character. The acidic character of the acid, because the carboxylic acid distinctly acid, the ionized of water give hydronium ion. Okay students, in all carboxylic acid dissolve in water to give off hydronium ion, hydronium H3O plus. Okay, H3O plus now reduced RCOO negative acetate. This is acidic medium for the carboxylic acid. Okay, however, the acidic strength carboxylic acid much less than mineral acid. Okay, much less than mineral acid. These strengths are depends upon extract ionization. Okay, turn depends upon stability of anion formed. anion form की stability हो जाती है. Okay student, now expressing of strength of the carboxylic acid are Ka equation. Ka equation, तो Ka equation is equal to product upon reactant. Okay, so product upon the hydronium ion H3O plus. Okay, now then the second product RCOO negative upon reactant are COOH one bracket में and another bracket में H2O. Okay students, now where K is equilibrium constant, this is equilibrium constant, ये equilibrium constant है. Okay, the acidic character of equilibrium constant, the dissociation constant generally acidic constant, it is acidic constant. A are represented of the acidic constant because measure is relative strength of the strength acid longer will K value. Okay, now K value are depends upon pKa. pKa is equal to, okay, pKa is equal to minus log Ka. The acidic characters value are depends upon the dissociation. The stronger acid will have higher Ka value, smaller pKa value will under acid will have smaller K but higher pKa value. In another word, larger the value of pKa, अगर ये वैल्यू क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, larger value of pKa, then weaker the acid, वो एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. एसिड. ओके, बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं. ठीक है, पीके वैल्यू की एक वैल्यू इसकी जनरली एक वैल्यू हो जाती है के ए वैल्यू और पीके वैल्यू. चार्ट आपको दिया गया है, उसमें आप लोग देख लेंगे, इस पर डिपेंड करेगा ये. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज द डिजॉल्व ऑफ द H2O form of the hydronium and the equilibrium constants value products upon reactant pK value negative log Ka value. When the larger value of pK, then acid or weak. Okay, now statements are noted.
Okay, now second, nature of halogen atom. Nature of halogen atom. Natures of halogen atom. ठीक है, ये हेलोजन एटम्स का जो नेचर है ये भी डिपेंड्स करता है आपका द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हाइड्रोजन ग्रुप ओके बिकॉज द विथड्रॉइंग इफेक्ट यानी माइनस इफेक्ट आर इजिली डिफेक्ट्स ऑन द greater than fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay students, now halogen are depends in carboxylic acid, the components of the CH3COOH. Okay, this is form of the fluorine CH2F is greater than ClCH2COOH. Okay, now bromine, now acid, iodine. BrCH2 COOH, one hydrogen replace and the halogenation and form of the fluorine, chlorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2ICOOH. ओके, ये बॉन्ड में फॉर्म करता है बिकॉज द विथड्रॉइंग इफेक्ट यानी आई इफेक्ट हाइलोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है. इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect, inductive effect are fluorine greater than chlorine greater than bromine greater than iodine. Okay, so nature of the halogen atom strength carboxylic acid depends upon the nature of electron withdrawing halogen atom. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हाइड्रोजन एटम पर डिपेंड्स करता है. ओके स्टूडेंट्स, आयोडीन विकास इंडक्टिव इफेक्ट, इसको माइनस आई इफेक्ट, इसको माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड वो आप पढ़ चुके हैं इसको. ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एनायन डिपेंड्स करता है ये. ओके, ये आपकी एसिडिक एंट्रेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंस है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगाओ तो आई इफेक्ट पर डिपेंड करेगा, बाकी पी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ वैल्यू, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल. ठीक है, कार्बोक्सिलिक है तो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल बहुत बार ये आ चुका है आपका ये रिएक्शन. ओके, reaction with metal, all acid react with the activity series of the metal reduce of the hydrogen atom. Okay, any all carboxylic acid RCOOH react with active metal like gas, sodium, potassium or reduce of the hydrogen gas and form of the acetate, metal acetate. Okay, तो हाइड्रोजन आर रिलीज, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा, तो ट्वाइस लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी ट्वाइस, ट्वाइस यानी यहाँ पर ऐड हो जाएगा RCOONA. ओके, इट इज कॉल्ड द सोडियम एसिटेट. दिस इज R represented of the CH3, RCH3 methyl group, so it is called the acetic acid and sodium acetate. The simple equation. बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, आप इसको कर लीजिए. बहुत बार से और भी कर सकता है, मान लो Zn से कर रहा है, Zn से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव भी करेगा बेटा. ठीक है, RCOOH ये हो गया. अगर ट्वाइस में ले लेते हो तो RCOOH. ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2 गैस और ये Zn जाकर यहीं पर ऐड हो जाएगा, तो RRCOO ये Zn. ठीक है, तो जिंक एसिटेट हो जाएगा यहाँ पर.
जिंक एसीटेट। इसी तरह एरोमेटिक में होगा तो बेंजोनियम हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगर यहाँ पर हम बेंजीन रिंग वाला ले लेते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बो सोडियम से और पोटेशियम से रिएक्ट करेगा। पोटेशियम आर द वेरी एक्टिव मेटल, सो इट इज sodium are react with the reaction. 2 moles of the benzoic acid and hydrogen removed, so form of the sodium benzoate, COONA। ट्वाइस है तो ट्वाइस कर देंगे। सोडियम बेंजोएट नेम भी आप लिख लीजिएगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। Okay, the simplest reaction with the metal। Okay, the third reaction are reaction with metal। Okay, okay, now next reaction with alkali। एल्कलाई एंड बेस बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़े भी है प्रीवियस क्लासों में। एल्कलाई, ऑल एल्कलाई आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर एल्कलाई। ओके स्टूडेंट्स, सो रिएक्शन विथ एल्कलाई, बी नंबर, reaction with alkali। Okay student, reaction with alkali, alkali NaOH or KOH। Okay, when the acetic acid when the acetic acid react with sodium hydroxide, because this is acid or this is base, so form salt and water। Okay student, so salt ये आ जाएगा आपका CH3 COONA, then water H2O। this is called neutralization reaction, sodium acetate। this is base, this is acetic acid, acid and base are formed salt and water, salt is sodium acetate। Number next, reaction with reaction with carbonate and bicarbonate, carbonate and bicarbonate। ओके, कार्बोनेट से रिएक्शन करवाना है एंड बाइकार्बोनेट। तो सिंपल सा कार्बोनेट आप ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट। ओके, व्हेन एसिटिक एसिड react with sodium carbonate, okay students, now form salt, carbon dioxide and water। this hydrogen is loses one hydrogen and one oxygen, and complements of the 2 moles of the acetic acid, so it is 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen replacement by H2O, 1 oxygen replaced, it is called CO2, H2O plus CO2, now Na2, twice CH3COO, salt, twice CH3COO Na, sodium acetate, carbon dioxide and water। Okay, carbonates are reduced only carbon dioxide, sulfonate react of the sulfur dioxide। now same process of the bicarbonate। okay, bicarbonate are reduced components and 1 mole of the CH3 COOH and sodium bicarbonate NaHCO3, same reaction, same process, one hydrogen and one oxygen। okay, one hydrogen and one oxygen is H2O, then form carbon dioxide, sodium, so sodium attachments of the CH3CO,
same product form CH3COOM, sodium acetate. Okay, carboxylic acid decomposed carbonate by bicarbonate evolving of carbon dioxide with awareness. Okay, ये बहुत तेजी से awareness करने लगता है, जलने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड से. Okay. Now next reaction, reaction with phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride. Okay, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिएक्शन विद PCl5 and PCl3, phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride. Okay students, when carboxylic acid convert into the halide, treatment with the phosphorus halide are formed acyl chloride and phosphorus oxychloride. Okay, now next reaction, all carboxylic acid represented are the RCOOH react with PCl5, Cl1, 2 and 5. Structure of the PCl5. Okay, RCOH, RCO are attachments of the 1 chloro group form acyl chloride, RCOOCl. Okay, 1 Cl are reduced. Then 1 hydrogen or 1 chlorine are added from this, and 1 hydrogen from this HCl. Now 1 oxygen are right, so Cl3 now double bond and of the PO, 1 oxygen, तो POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 लिख लेना, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड एसिल क्लोराइड. But the phosphorus trichloride are react with the acetic acid or form phosphorus acid H3PO3. ओके, रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी. तो दो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हैं, जिसके दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन इसके साथ अटैचमेंट करता है CO के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन यहां पर जाकर ऐड हो जाता है. ठीक है, ना नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, CH3COH प्लस PCl3. ओके, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. अब PCl3 है तो थ्राइस है, 3 यहां से निकालना पड़ेगा, इसको भी हमको 3 लेना पड़ेगा, तो R. ओके, प्रोडक्ट सेम बनेगा, ये CH3CO HCl यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा थ्राइस CH3COCl, RCO जैसे था वैसे आपका ये हो जाएगा. ठीक है, तो थ्राइस Cl यहां से आपको क्या हुआ, रिमूव हो गया, देखिए. ठीक है, तीनों Cl चले गए, अब 3H ये हो गया, और 3 आपका क्या बचा हुआ है, O बचा हुआ है. ठीक है, क्योंकि यहां तक गया है, देखिए, तो थ्राइस है तो 3 O बचे हुए हैं और 3 H बचे हैं, ये Cl पूरा जा चुका है इसके साथ. ठीक है, तो थ्राइस है तो थ्रेस, और ये इसका मतलब H3PO3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और POH का होल थ्राइस भी लिखा रहता है कभी कभी. ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, बट इसका मेन स्ट्रक्चर ये होता है फास्फोरस एसिड. ये क्या है, फास्फोरस एसिड, दिस इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड. ठीक,
H3PO3, तो फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड एंड एसिल क्लोराइड। सेम एरोमेटिक सेम में भी यही होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में C6H5CO CH3 निकल जाता है, यानी बेंजोइल क्लोराइड। ओके, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, C6H5 हो जाएगा, तो C6H5COCl, इट इज कॉल्ड द बेंजोइल क्लोराइड। ओके, यहाँ भी रिप्लेसमेंट होगा, तो वन रिएक्शन और आप कर सकते हो, C6H5COOH benzoic acid react with the phosphorus chloride and give the benzoyl chloride, and same process reaction and same reaction. Now next reaction with ethyl alcohol, reaction with ethyl alcohol C2H5OH, ethyl alcohol, when acetic acid react with ethyl alcohol form of ester, H2O रिमूव हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर C2H5 COO CH3 एज लाइक ए मैथिल एथिल एस्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथिल एथिल एस्टर, जिसको हम एथिल एसीटेट भी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, करना समझ में आए तो ऐसे आप करे हैं। देखिए यहाँ से OH रिमूव हुआ बेटा, और यहाँ से H, तो बचा क्या हमारे पास, CH3COCH, तो CH3COO, यहाँ पर क्या बचा है, C2H5, तो C2H5 हमने लिख दिया। देखिए ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, तो RCOOR जो होता है तो क्या होता है, एस्टर होता है। ठीक है, तो टू एल्किल ग्रुप है, अगर सेम एल्किल ग्रुप होता तो डाई हो जाता, अलग अलग है तो इसको हम एथिल एसीटेट भी कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर सोडियम आ जाता तो इसको क्या बोलते, सोडियम एसीटेट, अमोनियम आ जाता तो इसको अमोनियम एसीटेट। ओके, अब यहाँ पर क्या एथिल है तो इसलिए इसको हम एथिल एसीटेट बोलेंगे। तो एथिल एसीटोट एज लाइक क्या है, ये बेटा यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस भी लिखते हैं ना, क्योंकि कभी कभी ये पूछता रहता है। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में किस फॉर्म में आ गया, एस्टर है ये। कैसा एस्टर है ये भी आप बता सकते हैं, जर्नल नेम से भी बता सकते हैं, एथिल मैथिल एस्टर और एथिल एसीटेट। ओके स्टूडेंट्स, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्ट्रिफिकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर। टर्सरी एल्कोहल अगर इसका आ जाए तो अलग अलग हो जाएगा, जैसे टर्सरी एल्कोहल है तो टर्सरी एल्कोहल। ओके, टर्सरी एल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल तो R3 भी लिख सकते थे, चाहे ऐसे मैं बना के आपको बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, शॉर्ट फॉर्म आप लिख लीजिएगा, एल्कोहल। ठीक, 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल, लास्ट में आ जाएगा मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, नाउ टर्सरी एल्कोहल less than secondary alcohol, less than primary alcohol, less than methyl alcohol. Okay students, because similarly reactivity of the carboxylic increase, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो सेकेंडरी प्राइमरी सेम टू सेम प्रोसेस होता चला जाएगा। इसका भी कभी कभी पूछ लेता है, अगर यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल का मतलब यहाँ पर 3 डिग्री है तो कोई भी लगा सकते हैं ना, जैसे ये R3 लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R3 हो गया तो R3 के साथ अल्कोहल लगा देंगे तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, R3COOH ऐसे करके ये अल्कोहल के लिए हो जाएगा। अगर रिएक्टिविटी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तो R3COOH कर देते हैं, ऐसे
CCOOH, है ना, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना। H की जगह पर क्या हो गया, R3 हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ऐसे कार्बन करेंगे तो ये 3 हो गया ना, यहाँ पर R, ये भी R, तो R3C और COOH, तो बात तो वही हुई। इट इज कॉल्ड द टर्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंक्रीजिंग एट द सेकेंडरी, यहाँ पर भी ये सेकेंडरी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R, चाहे ऐसे कर लीजिए 2R होगा, यहाँ पर एक HL आएगा, ठीक है, COOH हो जाएगा। फिर लास्ट में करोगे एक R और कम हो जाएगा एल्किल ग्रुप, H जुड़ता जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी COH। इसके बाद CH3 हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 COOH। लास्ट में अगर देखेंगे तो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस एज अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नोटेड दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया बोले या फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड, तो सेम वही होगा, ठीक है, क्योंकि एमाइड फॉर्म होता है तो इसीलिए इसको हम फॉर्मेशन ऑफ एमाइड आर रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। now acetic acid react with NH3, लोन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये क्या करेगा, पहले एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जाके NH4 हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट बना लेगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में अमोनियम सॉल्ट बना लेगा, ये H है बेटा, इससे जाकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 COO। अगर ऐसे दे तो निगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा NH4 प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर क्या फॉर्म कर लिया, ये अमोनियम सॉल्ट, ओके, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट sometimes के लिए बनेगा because the ionization are present, so it is one two hydrogen and one oxygen are removed, so it is from the H2O, यहाँ से H2O तुरंत रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन ये और दो हाइड्रोजन, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या CH3CONH2, CH3 चाहे ऐसे बना लीजिए बॉन्ड लगाकर CONH2, टू हाइड्रोजन जा चुका है, तो CH3CONH2 आर कॉल्ड एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड, एसिड के साथ एमाइड हो जाएगा एसिटामाइड, एसिटामाइड, दिस इज आवर फार्मूला एसिटामाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ द एसिटामाइड एंड रिएक्शन विद अमोनिया, सेम रिएक्शन, okay, when the benzoic acid are react with the ammonia, so it form of the acetamide to benzamide, okay, when one reaction are created, now CH3 like C6H5, CH3 like C6H5, benzene attachment, so it is called the benzamide, C6H5 CONS2, same reaction, okay students। इसमें बहुत फेमस रिएक्शन है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन विद अमोनिया में, ठीक है, थैलिक एसिड से बनता है थैलामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का फार्मूला आप जानते होंगे,
C6H4COOH का होल ट्वाइस, C6H4, ओके, यानी 4 यहां पर होगा, यहां पर COOH का होल ट्वाइस, ये ठीक है। थैलिक एसिड, यहां पर P साइलेंट होता है, थैलिक एसिड, ओके स्टूडेंट। थैलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, तो यहां पर ये ट्वाइस ले लेंगे, जब ट्वाइस ले लेते हैं तो सेम प्रोसेस में सॉल्ट बनाता है, यहां पर NH4 हो जाता है, ये ठीक है, COO NH4 अमोनिया, चाहे निगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दीजिएगा, COO NH4, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए, अमोनियम थैलेट हो जाएगा, जैसे वो अमोनिया तो इसको नाम हो जाएगा अमोनियम थैलेट, थैलिक एसिड है तो थैलेट, यहाँ पर चाहे लिख दीजिएगा आप लोग पूरा अमोनियम, अमोनियम IUM लिख दीजिएगा, थैलेट, ठीक है। अमोनियम थैलेट, P साइलेंट होगा यहाँ पर, P अमोनियम थैलेट, ओके। सेम रिएक्शन होगा, अमोनियम थैलेट, हीट कर देंगे बेटा इसको, उसी तरह जैसे हीट करोगे, एक H और दो H2O इसमें से रिमूव होगा, एक H2O इसमें से रिमूव होगा, ये ट्वाइस H2O क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस H2O जब रिमूव हो जाएगा तो सेम उसी तरह NH2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये C है, O बचा और NH2, ठीक है, CONH2, बेंजीन रिंग अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड द थैलामाइड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, थैलामाइड बन जाएगा, जैसे ये था तो यहाँ पर थैलामाइड, 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 ठीक है, थैलामाइड, बिल्कुल। अगर इसको स्ट्रांग हीटिंग कर देते हैं, देखिए यहीं पे थैलिक एसिड बन जाता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्ट्रांग हीट, यानी हीट अगर ज्यादा हो गई आपकी, स्ट्रांग हीट हो गया, तो जब स्ट्रांग हीट हो जाएगा तो आप जान रहे हैं कि यहां से क्या हो जाएगा, NH3 रिमूव हो जाएगा, NH2 ये है, NH2 ये है, अब यहां से एक H अगर जैसे ही मिला इसको, एक H, तो ये NH3 क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, जब NH3 रिमूव हो जाएगा अमोनिया, तो यहां पर बचेगा क्या बेटा, ओनली वन N और H, तो इसका देखिए कैसे बनता है थैला, ये एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा, ये हो गया, और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, अब बेटा यहाँ पर क्या बचे हुए, ओनली NH, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इट इज कॉल्ड थैलामाइड, इमाइड, थैला इमाइड, यहां पर हो जाएगा IMIDE, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विथ हीटिंग फ्रॉम एसिड एमाइड, इसमें कहीं भी पूछ सकता है, थैलिक एसिड अमोनियम थैलेट बनाता है, थैलामाइड भी बनाता है, स्ट्रांग में थैलेमाइड बनाता है, हो गया।